बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की ऐतिहासिक जीत का जश्न मातम में तब्दील हो गया। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast like a roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. और अंदर आईपीएल जीतने का जश्न मनाया। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. You're irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. Modern kingdom for the taking. उन्हें अपनी जान की कीमत पर चुकानी पड़ेगी। 13 साल की दिव्यांशी से लेकर 26 साल की दिया और 21 साल का श्रवण। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. कैसे हो सकता है कि इन स्टार खिलाड़ियों को जानकारी ही नहीं थी? और जानकारी नहीं थी तो दी क्यों नहीं गई? भगदड़ के बाद भी जश्न क्यों मनता रहा और विजयी भाषण चलता रहा, पीठ थपथपाई जाती रही। विराट कोहली को एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचने वाले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का कहना है कि जश्न सिर्फ थोड़ी देर चला। सोचिए, लोगों की मौत के बाद अगर 1 मिनट भी जश्न मना, तालियां बजी, ठहाके लगे, फ्लाइंग किस दिए गए, तो इससे ज्यादा अमानवीयता और निर्दयता क्या हो सकती है? जब खुद सरकार एक जश्न का नेतृत्व करेगी, खेल की लोकप्रियता को बढ़ाने की कोशिश करेगी, भीड़ को रोकने और उसके सही प्रबंधन की जगह खुद झंडा लेकर घूमेगी, तो आम लोगों से क्या उम्मीद की जाएगी? जब नेता इस तरह जश्न मनाएंगे तो जनता तो उनके पीछे पागल होगी ही। अब सरकार आयोजकों पर सवाल उठा रही है। आयोजक प्रशासन पर, और बीच में फंसे हैं वो 11 परिवार जो अपनों को खो बैठे। हर जिम्मेदार अब कह रहा है कि हमें जानकारी नहीं थी। मान लेते हैं कि जश्न मना रहे खिलाड़ियों को बाहर हुई भगदड़ और लोगों की मौत की जानकारी नहीं थी, लेकिन क्या सरकार के कर्ता धर्ता भी इससे अनजान थे? आखिर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार कप उठाने स्टेडियम के अंदर क्यों पहुंचे? उनका इस कप की जीत में क्या योगदान? क्या क्रिकेट और आरसीबी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को दांव पर लगा दिया? जिस वक्त उनकी भीड़ में दबते, जान गंवाते और घायल होते लोगों के साथ होना चाहिए था,
उस वक्त वो आरसीबी के कप के साथ थे। जब घायलों को उठाने की जरूरत थी, डीके शिव कुमार कप उठा रहे थे। बेंगलुरु में जो हुआ उसकी भूमिका मंगलवार रात से ही तैयार हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन बिल्कुल सतर्क नहीं हुआ। बेकाबू भीड़ और अनगिनत लोगों को रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जिससे उतने ही लोग स्टेडियम तक पहुंचे जितना झेलने की क्षमता हो। और अगर इन लोगों को रोकने की व्यवस्था नहीं थी तो क्या जश्न मनाना इतना जरूरी था? इस जश्न का आयोजन कर्नाटक सरकार और वहां के क्रिकेट एसोसिएशन ने कराया था, लेकिन अब कोई भी इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। सरकार इसके लिए क्रिकेट एसोसिएशन की व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। सरकार मान रही है कि 3 लाख से ज्यादा लोग आए थे, जबकि चिन्नास्वामी स्टेडियम की क्षमता मात्र 35,000 की है। अगर सरकार के पास इतनी व्यवस्था नहीं है तो जश्न के लिए लोगों को खुला न्योता क्यों दिया गया? कर्नाटक सरकार ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए क्रिकेट एसोसिएशन पर ठीकरा फोड़ा। सीएम सिद्धरामैया ने बीजेपी के सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि महाकुंभ के दौरान भी भगदड़ हुई थी। ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कर्नाटक सरकार ने भी हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की। लेकिन बेंगलुरु भगदड़ में 11 मौतों के बाद सबसे अहम सवाल यही उठ रहा है कि जीत के जश्न को मातम में बदलने का जिम्मेदार कौन? क्या आरसीबी की जीत को भुनाने में लोगों को बचाना भूल गई कर्नाटक सरकार? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने भगदड़ का ठीकरा सीधे सीधे क्रिकेट एसोसिएशन पर फोड़ दिया है। सीएम ने कहा कि ये प्रोग्राम क्रिकेट एसोसिएशन ने करवाया था, इसके बारे में हमें नहीं बताया गया। अरे सरकार की तो जिम्मेदारी थी ही, जिम्मेदारी उस बीसीसीआई की भी थी जो आईपीएल को करवाकर हर साल लाखों करोड़ों का रेवेन्यू कमाकर अपनी जेबें भरता है। और बेशर्मी तो देखिए, हादसे के बाद बीसीसीआई कह रही है कि हमारा इस इवेंट से कोई लेना देना ही नहीं था। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा कि हमें घटना की जानकारी नहीं थी। अरुण धूमल का कहना है कि इवेंट आरसीबी का था। आरसीबी ने हादसे के बाद दुख जताया, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो फैंस जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनका क्या? चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए हादसे के बाद विराट कोहली का भी पहला रिएक्शन आया है। विराट बोले कि मैं पूरी तरह से टूट गया हूं, शब्द ही नहीं है कुछ कहने को। सब दुख जता रही हैं, संवेदना जता रही हैं और किसी के पास शब्द ही नहीं बचे। लेकिन सवाल उन 11 परिवारों का है जिन्होंने अपने घर का कोई ना कोई खो दिया। इनकी जिंदगी पर क्रिकेट की दीवानगी इस कदर भारी पड़ गई कि अब जिंदगी में हमेशा के लिए एक शून्य बचा है। सवाल फिर वही कि आखिर इनकी मौत का जिम्मेदार कौन?